morning, dear students. How are you? Hope you will be fine. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Today I am present here to explain the second chapter from class 7 from book Honeycomb. The title of the chapter is The Gift of Chappals. Yes, chappals means slipper which we wear. This chapter is written by Vasanta Surya. So let's start this chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. So here's a girl named Mridu. She lives in Chennai with her grandparents. In Tamil, Tapi is called to grandmother and Tatha is called to grandfather. So one day, Tapi's grandmother Miss Tapi tells to Mridu that today we are going to your aunt's home. Tapi means Mridu's grandmother. She tells her today we are going to your aunt's home and aunt name is Rukumani. We are going to meet your cousins Lali, Ravi and Meena and they are visiting to Rukumani's house. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe in front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Just imagine when you are visiting to your cousins and your cousins get excited to see you. Similarly, Ravi and Meena get very excited to see Mridu and Ravi pulled her hand into the house. Then Mridu says that wait, let me take off my slipper. पहले मुझे अपने slippers उतारने दो. Then she takes out her slippers and put near a pair of large black one. पास में अब एक बड़ी सी ब्लैक कलर के स्लीपर के पेयर के पास में उसने अपने स्लीपर को उतारा. जो स्लीपर्स ब्लैक कलर की थी बट धूल की वजह से बहुत बिल्कुल ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी और उन ग्रे कलर की चप्पल में पंजों के निशान क्लियरली दिखाई दे रहे थे जो कि काफी लंबे और पतले थे. स्क्रॉनी मीन्स थिन. सी हियर पंजों के निशान किस तरीके से इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. सी थॉट दैट ये जो स्लीपर हैं काफ़ी ओल्ड और काफ़ी पुरानी हैं. पहले उसने उन स्लीपर्स में ध्यान नहीं दिया लेकिन उसने नोटिस किया कि वहाँ पे एक स्लीपर्स का पेयर पड़ा हुआ है. Mridu have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. So in this paragraph, Mridu just noticed that there are a black color slippers. लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो किसके स्लीपर हैं और अपने स्लीपर को उतार के वहाँ से तुरंत चले गई रवि के साथ. एंड वहाँ पे उसने देखा कि एक किटन को फटे हुए फुटबॉल में रखा गया है और एक कोकोनट के हाफ शेल मीन्स जो कोकोनट का बाहर का कवर होता है ना उसमें उसको मिल्क दिया हुआ है. और अब रवि और मीना उसे यह बताना चाहते हैं कि वह किटन उसे कहाँ से मिली. तो मीना बताती है कि आज सुबह ही हमें मॉर्निंग में यह गेट के पास म्याऊं म्याऊं करते हुए दिखाई दी और इसलिए हम इसको अपने घर के अंदर ले आए. अब मीना उसे बोलती है कि यह एक सीक्रेट है. क्योंकि अगर उनकी दादी को पता चल जाएगा कि दे हैव अ कैट देन शी विल लीव द हाउस. वह तुरंत ही घर छोड़कर चली जाएंगी. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent.
Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. So in this paragraph we will see Ravi got very upset. रवि बहुत परेशान है क्योंकि उसे उस किटन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वह बताता है कि अक्सर हमारे एल्डर्स हमको समझाया करते हैं कि हमें एनिमल से, इन क्रिएचर्स से प्यार करना चाहिए और इनके लिए दयालुता दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं कि और ऐसा बोलते हैं कि इस डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लाओ। फिर वह मृदु को बताता है कि तुम्हें पता है अभी मैं इसके लिए दूध लेने गया था किचन में, तो वह भी कितना मुश्किल काम है, वहाँ से दूध लाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि दादी ने मेरे हाथ में दूध का ग्लास देख लिया था और वह काफ़ी सस्पिशियस लुक से मुझे देख रही थी और इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ और यह दूध मैं खुद के लिए ले जा रहा हूँ, मुझे खुद इस दूध को पीना है। एंड ही थ्रो हर ऑफ द सैंड, और उन्होंने अपनी दादी को मिसलीड करना चाहा मिस, ताकि उन्हें उस दादी को बच्चों के ऊपर शक न हो। इस वजह से उसने वह मिल्क जो टम्बलर में जो मिल्क था, मिस टम्बलर मीन गिलास, जो गिलास में मिल्क था उसे खुद पीना पड़ा। और इसके बाद फिर दादी ने बोला इस ग्लास को वापस दो। देन ही सेज दैट पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, डोंट वरी अबाउट इट, कि मैं इस ग्लास को खुद धो लूंगा, आप परेशान मत होइए। रश टुवर्ड्स द बैकयार्ड, और इसके बाद वो बैकयार्ड में गया जहाँ पर उन्होंने किटन को रखा हुआ था और जितना भी मिल्क बचा हुआ था उसके ग्लास में उसने उसको कोकोनट शेल में डाला और वापस तुरंत किचन में पहुंचकर गिलास को वॉश करके उसकी जगह में रख दिया। और अब वह सोचता है कि महेंद्रन को फीड करने के लिए उसे कोई और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Mahindran, this little kitty name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty name. तो जैसे ही उसका नाम सुनती है मृदु, महेंद्रन, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और क्योंकि उसे यह नेम बिल्कुल रियल लगता है, उसे ये नहीं लगता कि किसी किटन का नेम होगा। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Punnai, MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. तो अब जैसे ही मृदु महेंद्र का नाम सुन के खुश होती है तो रवि भी उसका कंप्लीट नाम उसे बताता है और यह बोलता है कि उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। मीन्स इस किटन का नाम कंप्लीट नेम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, बट यू कैन से एमपी पुन्नई इन शॉर्ट, तुम इसे शॉर्ट में एमपी पुन्नई भी बुला सकती हो। और फिर वो उसकी तारीफ करने लगता है, बताता है कि यह एक बहुत अच्छी ब्रीड की कैट है। ब्रीड मीन्स जाति, मीन्स बहुत अच्छी जाति की बिल्ली है। और जस्ट लुक इट्स फर, इसके फर को देखिए। फर मीन्स जो रोए होते हैं ना, जो बिल्ली के शरीर में जो बाल होते हैं, तो बताता है कि इसके बालों को देखिए, इट्स जस्ट लाइक अ लायंस मेन, बिल्कुल जो लायन की गर्दन पे जो बाल होते हैं बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देते हैं। मीन्स ही कंपेयर हिज कैट टू लायन। और फिर वो बताता है कि तुमने प्राचीन काल के पल्लव जो राजा थे उनका प्रतीक देखा है? एम्ब्लेम मीन्स प्रतीक। देन मृदु गिगल्ड, मृदु हंसती है। Think I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Have not been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking of none other than the lion. The Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship cat in ancient Egypt. तो जब मृदु हंसती है तो रवि उसे बताता है कि यह कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, यह महाबली, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम का नाम नहीं सुना है? तो यह कैट महाबलीपुरम से बिलोंग करती है। मीन्स
वहाँ जो फिर बताता है कि when I went to the Mahabalipuram in my school trip, then I saw a statue there. मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था, और इस तरीके से फिर उस स्टैचू को डिस्क्राइब करता है। ताथास ताथास ताथास, ताथा मीन्स ग्रैंडफादर ना। तो जिस तरीके से हम किसी बात को बताते हैं ना कि ये उसके ग्रैंडफादर के इस तरीके से रिलेशन बताता है वो, तो इस तरीके से वो बताता है। मीन्स मेन फैक्ट यह है कि महेंद्र उसे यह रवि यह बताना चाहता है कि जो महेंद्रन है वह उस एंशियंट कैट की डिसेंडेंट है, मीन्स उनकी पूर्वज है। और फाइनली वह यह कह के कंक्लूड करता है कि जो महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थी उनकी यह वंशज है। मीन्स अब वह काफी प्राउड फील करता है अपनी कैट को लेकर के। He said that they worshipped in ancient Egypt, और यह बताता है कि प्राचीन समय में इजिप्ट में इन कैट की पूजा की जाती थी। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess, bastard. Yeah, that's it. So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway on one of the Pallav ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his streak as Mahendran. MP Punay here, who he shrieked, very pleased with himself. तो जब रवि काफी देर से अपनी कैट की तारीफ किए जा रहा था और मृदु और मीना उसको लगातार देख रहे थे, तो सोचते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं क्या ये सच भी है। देन मृदु आस्क्ड टू रवि दैट कि जो तुम ये बातें कर रहे हो क्या ये सच में है, सच है ये बातें। तो इसके बाद वो बताता है, लास्ट में वो बोलता है वो कंक्लूड करता है कि ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज हैं, तुम नहीं जानती। और वही देखो MP पुन्नई जो है वो हमारे घर पे है, मेरे पास है, और वो काफी खुश होता है। इस तरीके से वो उसकी तारीफ किए जाता है। Mahendra looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful hoof eek was a screech from the window. What a weird sound! If Nidu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tree of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. The screeching went on and on. What's that noise? said Mridu. तो रवि अभी अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बताता है उस कैट के बारे में। तो अचानक से अ क्रीच साउंड, वो एक क्रीच साउंड मीन्स एक क्रीच, एक जोर की आवाज़ सुनते हैं। और इस आवाज़ को जब महेंद्रन सुनता है तो वो काफ़ी डर जाता है और वह बाउंस होता है, मीन्स जोर की डर से वो जोर से उछलता है। और पास में ही एक प्लेट में, एक ट्रे में रेड चिलीज को रखा गया है धूप में सुखाने के लिए, तो जंप करके उसमें गिर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है म्याऊ म्याऊ। इस आवाज़ को सुन के मृदु पूछती है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। Then Lali, learning to play the violin, granted Ravi she will never learn a thing. The music master just gone on playing like a train whizzing on and on, while Lali all the time derailing, going completely off track. तो रवि बताता है कि यह आवाज़ बाहर विंडो से आ रही है और वहाँ पे लाली जो उनकी एक और कजिन है वह वायलिन बजाना सीख रही है। तो रवि बताता है कि वह कभी भी वायलिन सही से नहीं बजा सकती। उसके जो उसके टीचर हैं वह तो एक वायलिन को एक सुर में बजाते हैं और अच्छे से गाते हैं, जैसे कि एक ट्रेन चलती है, जैसे एक ट्रेन का साउंड होता है ना एक सुर में। लेकिन लाली का गाना इस तरीके से लगता है जैसे कि जो ट्रेन है वो ट्रैक से हट गई हो, मीन्स आउट ऑफ ट्रैक हो गई हो। मीन्स रवि कंपेयर्स द लाली विथ ट्रेन। तो लाली को कंपेयर करता है आउट ऑफ ट्रैक, बोलता है कि जो ट्रेन जब आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है तो जिस तरीके से उसका साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जस्ट लाइक जो लाली है जब वो गाती है तो वैसे ही साउंड सुनाई देता है। चिल्ड्रन, इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू जस्ट कीप टू read this chapter again and again, then you will understand this chapter. Okay, I will meet very soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.